Very good morning, students. Welcome to the class. We are studying economics, and today we will study macroeconomics, chapter 6, remaining portion. And from next video, we will start our other book, Indian Economic Development. So, in between, all of you, please arrange the book. Okay. So, we have studied up to margin requirement. Second qualitative instrument is rationing of credit. Rationing of credit refers to fixation of credit quotas for different business activities. Rationing of credit is introduced when the supply of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy. The RBI fixes credit quotas for different business activities. The commercial banks cannot exceed the quota limits while granting loans. I think we have done it, but still we are repeating. Quota means any amount fixed by the bank. Quota means proportion, you can say. So the proportion is fixed by RBI for different loans, because the motive is that the loan should not be given to such persons who are going to increase more aggregate demand, because increase in aggregate demand will cause increase in inflation. So RBI tries to fix quotas for different business activities. So less percentage is fixed for those activities where the chance of increasing AD is more. For example, speculative activity. I told you speculation means there is no actual transaction. In this type of activity, people only make their contract to purchase some goods or to sell some goods, but actual transaction does not take place. And finally, at the end of the day, they make the balance transactions. For example, if they contracted for purchasing some goods for rupees 100, and at the end of the day the rate is 110, then they will be benefited by rupees 10, then they will take rupees 10. And another example is that they contracted for purchasing rupees 100 per kg, but at the end of the day rate is 95 per kg, because rate is decided by the market forces, all of you know, demand and supply. But if the rate is reduced by the end of the day, then they will be lost by rupees 5. For example, they contracted for purchasing for rupees 100, but actual price at the end of the day is rupees 95. Then rupees 5 they have to pay. In this way, they do the transactions. So it is like an auction, boli lagana, and they make transactions in advance for the future. And if in the future the price fluctuates, the balance amount they give or take. This is known as rationing of. This is known as speculative activities. By these activities, actually demand rises in the market, because if someone is contracting for purchasing 100 bags of wheat, then actually the demand of wheat will rise in the market by 100 bags. And if in the market the total price fluctuates because of this, then the benefit or loss of this fluctuation they give or take at the end of the day. In this way they do the speculative activity, जिसको हिंदी में सट्टेबाजी कहते हैं, सट्टा लगाना, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो लोग बोली लगाते हैं कि हम लोग इतने रुपए में गुड्स खरीद लेंगे। ऑनलाइन चलता है सब कुछ, ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उन्होंने बोली लगाई, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अभी की 100 रुपए में वो खरीदने की बोली लगाई, और एंड में वो जब दिन खत्म हुआ तो रेट हो गई 110। तो जाहिर सी बात है उनको 10 रुपीज का फायदा हो गया ना, क्योंकि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था, 100 का, तो वो 10 रुपीज उनको मिल जाएंगे। एक्चुअली में ना कुछ खरीदेंगे ना कुछ वो बेचेंगे, मगर क्या हुआ, जो डिमांड है वो 100 बैग्स ऑफ व्हीट से बढ़ जाएगी। दिस इज नॉन एज स्पेक्यूलेशन। तो इन तरह की एक्टिविटीज में पैसा लगाने के लिए बैंक लोन कम देगी व्हेन आरबीआई मेक्स रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, और उन चीजों में लोन ज्यादा दिया जाएगा जहां पर डिमांड बढ़ने की
चांस कम है, जैसे कि एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, इन चीजों में। This restricts the supply of money in the economy and inflation is controlled. On the other hand, rationing of credit, if already in practice, is withdrawn to increase the supply of money. This causes deflation. Third point is moral suasion. Moral suasion का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई एडवाइस देती है कि आपको क्रेडिट कम देना है या ज्यादा देना है, उसको बोलते हैं moral suasion. It is like rendering an advice to the commercial banks by the RBI to follow its directives. The banks are advised to restrict loans during inflation. जाहिर सी बात है, जब इन्फ्लेशन होगा तो लोन को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन के टाइम पर उसको लिबरल होने के लिए कहा जाएगा, जिससे कि मार्केट में ज्यादा मनी फ्लो हो और डिफ्लेशन खत्म हो। डिड यू नो इट, साइड में जो बॉक्स है वो पढ़ रहा हूं मैं। Moral suasion is a combination of both persuasion and pressure. The RBI tries to persuade the commercial bank. Persuade मतलब उनको मनाना, suggest करना, advice देना. But if persuasion does not work, it uses the required pressure as an apex bank of the country. मगर जब persuasion से काम नहीं चलता तो वो फिर अपना pressure भी लगाते हैं। If pressure also does not work, the RBI can use direct action, which includes the recognition of the कंसर्न बैंक। अगर बैंक आरबीआई की बात नहीं माने तो आरबीआई के पास पावर है उस बैंक को डी रिकॉग्नाइज करने की। रिकॉग्नाइज का उल्टा डी रिकॉग्नाइज। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉरल सुएजन वर्क्स बोथ एज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज ए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। हाउएवर ऑफन इट इज क्लासिफाइड एज ए क्वालिटेटिव बिकॉज ये ज्यादातर क्वालिटेटिव ही है, इसमें कोई ऐसे परसेंटेज फिक्स नहीं की जाती। नीचे आपको चार्ट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ दे रखे हैं आपके रिवीजन के लिए। HOTS पेज नंबर 162। व्हाट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? इट रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक रिलेटिंग टू सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे अभी अपन ने रेशनिंग ऑफ क्रेडिट पढ़ा, वैसा ही है ये भी, इसका मतलब वही है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर में बी एनकरेज विद ए व्यू टू स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन इन दीज सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ या कोई माइनिंग हुआ, जहां से हमें ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन देंगे। दिस इज ए पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड, द सेंट्रल बैंक में डिसाइड टू रेस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स। जनरली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज लाइक स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन इज डिस्करेज। ये भी एक तरीके का स्पेकुलेशन है, ब्लैक मार्केटिंग है, फूड ग्रेन्स को ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना। उससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग ये कहलाती है कि पहले गुड्स को बहुत सारा स्टोर करके रख लिया जाता है और जब उनकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सप्लाई को कम कर दिया, सप्लाई को स्टोर करके रख लिया और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी और उससे क्या होगा, बाद में मार्केट में इन्फ्लेशन होगा और उस दौरान वो उस गुड्स को वापस बेचेंगे। इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव, अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। दिस इज ए नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेगेटिव एप्लीकेशन का मतलब है कि क्रेडिट कंट्रोल को अगर रोकना है तो हम कुछ एरियाज को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि जहां पर लोन कम देना है या नहीं देना है, और इसका पॉजिटिव एप्लीकेशन ये है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनका प्रपोर्शन ज्यादा फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद आप लोग निकालिए, इसके अंदर जो सीबीएसई क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जन धन योजना aimed at every household in the country to have at least one bank account. Explain how deposits made under the plan are going to affect national income of the country. जन धन योजना आप लोगों ने सुना होगा, इसमें सारे गरीबों के, सभी लोगों के जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोले गए जिसमें कि वो अपनी सेविंग्स को जमा करा सकते हैं। इससे क्या नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा? इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि लोगों के पास जो पैसा है, चाहे वो कम पैसा ही है, मगर वो एक जुड़कर एक अच्छा अमाउंट बैंक के पास बन जाएगा और बैंक उस पैसे को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में काम में ले सकती है, लोन वगैरह देने के लिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जनधन योजना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, millions of people have opened their bank account.
This has enhanced primary deposits of the commercial bank. It is on the basis of their primary deposits that the banks are able to create secondary deposits. जैसा कि हमने मनी क्रिएशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जितना बैंक के पास कैश होता है उतना ही ज्यादा वो उधार मार्केट में दे सकते हैं। तो जनधन योजना से क्या होगा, लोगों का पैसा बैंक में जमा होगा और बैंक के पास कैश रिजर्व बढ़ेंगे और कैश बढ़ने से बैंक ज्यादा मार्केट में लोन दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट. It leads to expansion of credit in the financial market. Accordingly, investment tends to rise. Higher investment leads to increase in national income of the country. तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से ज्यादा नेशनल इनकम कंट्री में बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, तो एनएनपीएफसी भी बढ़ेगा. दैट इज क्लियर. गवर्नमेंट बैंक फंक्शन, बैंकर्स बैंक फंक्शन, दैट ऑल ऑफ यू नो. गवर्नमेंट बैंक मीन गवर्नमेंट का एजेंट होता है सेंट्रल बैंक. बैंकर्स बैंक मीन सारे बैंक के अकाउंट आरबीआई में होते हैं और वो हेड होता है सारे कॉमर्शियल बैंक का. फिफ्थ है करेंसी इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक, येट वी से दैट कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी. एक्सप्लेन हाउ इज दिस मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक लाइकली टू अफेक्ट द नेशनल इनकम. एक्सप्लेन. समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को कि सेंट्रल बैंक तो नोट्स इशू करता है मगर कॉमर्शियल बैंक तो कोई नोट्स इशू नहीं करता, फिर भी अपन कॉमर्शियल बैंक को मनी का सप्लायर क्यों मानते हैं. तो ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट्स के फॉर्म में मार्केट में क्रेडिट देकर मनी क्रिएट करता है. इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और है, व्हाई डू वी से दैट कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी व्हाइल वी आल्सो से दैट सेंट्रल बैंक हैज द सोल राइट टू इश्यू करेंसी. सेम क्वेश्चन है. एक्सप्लेन व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक ऑन नेशनल इनकम. आंसर पढ़ रहा हूं मैं. मनी सप्लाई हैज टू कंपोनेंट, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स. Currency is issued by the central bank, no doubt, whereas demand deposits are created by commercial bank. And I told you this is the major part of supply of money. They create money in the form of demand deposits related to the loans offered by them. वो कैसे मार्केट में मनी क्रिएट करते हैं? डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करके. वो लोन किस फॉर्म में देते हैं? डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में. और वो डिमांड डिपॉजिट मनी की काउंटिंग में, मनी की सप्लाई में इंक्लूड होता है. डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, और वो उनके कैश रिजर्व से कई ज्यादा होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. दिस इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक दैट कैश विड्रॉल ऑफ फंड इज ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट. और कॉमर्शियल बैंक ये जानते हैं कि हमारे पास जितने डिमांड डिपॉजिट है सारा पैसा निकालने कभी कस्टमर नहीं आता. सिर्फ 10% या 20% परसेंटेज के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ परसेंट लोग ही पैसा निकालने के लिए आते हैं. The money created by the commercial bank in the form of demand deposit is mainly used for investment or production purposes. ज्यादातर लोन वही लेते हैं जिनको कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो या प्रोडक्शन करना हो. Any rise in investment leads to many times more increase in the national income of an economy. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. That is the multiplier effect. इसके अंदर भी मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में और ध्यान से समझेंगे. उनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, इस तरह ये अपना चैप्टर कंप्लीट है. इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं जैसा पढ़ाया गया है. और जैसा कि मैंने बताया कल से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम शुरू करेंगे, तो आप वो बुक्स अरेंज करके रखिएगा. ओके, हैव ए गुड डे. थैंक यू.